Okay, like my voice is clear to you, right? Okay. Yes, it's clear. Yeah, today in the morning I uploaded one data sheet. Just a minute, I'm sending it to you again. Uh, just a minute. Yeah, yeah. I have sent you one timetable. If you want, I can display it here on there as well. Can you see the timetable? Yes, not in the screen. I got it from WhatsApp. Okay, just a minute. Yeah. Can you see it in the screen, right? Yeah, now it's visible. Yeah. So just wanted to inform you, just I wanted to bring it in your notice that this is the prelim timetable for ICSN's का prelim one. Prelim exams which are going to be conducted. 80 marks का full portion it would be there. And first prelim, this prelim one, you have to give this one. Prelim one is compulsory. Okay, you have to give this. And for you, the main focus is this Hindi. One, two, three, four, five. These are the five prelims which are going to be conducted. First prelim would be there on 13th October and the paper is ready. And then your second prelim would be on 4th November. Third prelim would be there on 14th December. Fourth prelim would be there on the starting day of the year. That is the first Sir, January. but my but my actual school exam starts on 14th October. 14th October. Okay. So one thing we can do that कि I can send you the paper on 12th October itself. Asha, you are telling October or Okay. November? October. October. So yeah, I can send you the paper on 12th of October and then you can attempt it because the paper is good. And yeah, but we can't change the dates because this date is for all. So that's why we can't change it. But yeah, you can adjust a day or two here and there. Your last film would be there on 13th February. That is few days before your boards, 2025. And now we're having this year one new type of test, screening test, that is your AIST, All India's screening test. In this, I would like any of our teacher or either I would be calling you personally on number in front of your parents, be it mother or father. We would be asking you random questions from Hindi, okay, from any chapter or something. These 3 days are selected, and you would be asked random questions around six to seven, yeah, 10 questions you would be asked, and you would be tested in front of your parents itself. You would be given time to think the answer. ठीक है. So this is your test series का plan कि how your exams are going to be conducted. Okay. Anyways, now let's focus on the chapter. First prelim is going the first prelim on 13th October would be having all the chapters whichever I have taught you. ठीक है. So yeah, whichever chapter we have completed till now, all chapters would be there in that. Not like सारे chapters पढ़ाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ही आएंगे but उसमें से ही selected chapters आएंगे. Okay. So if you are not aware with the syllabus, I will just revise you with the syllabus. Section A, ठीक है. First question would be your निबंध, ठीक है. निबंध रहेगा आपका पहला प्रश्न, 15 मार्क का. 5 निबंध के क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है. मैं सजेस्ट करूंगा पिक्चर वाला कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने का, कभी भी हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि वो बहुत वीक बच्चों के लिए है, ठीक है, जो बिलो एवरेज है या एवरेज के बच्चों के हैं. तो नेवर टू अटेम्प्ट दिस निबंध में पिक्चर स्टडी. सेकेंड वन इज योर पत्र, जो 10 मार्क का आएगा. दो पत्र में से कोई एक पत्र अटेम्प्ट करना है. एक औपचारिक होगा, एक अनौपचारिक होगा. मैं सजेस्ट करूंगा कि औपचारिक अटेम्प्ट करना, अनौपचारिक में आपके मार्क्स ज्यादा कटते हैं. औपचारिक में आपको जो मार्क्स रहता है आपके एड्रेस के फॉर्मेट में ही ज्यादातर मिल जाता है, आपका कंटेंट बहुत कम होता है लिखने को. एंड देन यू आर हैविंग अपठित गद्यांश, ठीक है. अपठित गद्यांश भी आपको रहेगा, 10 मार्क का रहेगा. एंड अपठित गद्यांश जनरली वेरी इजी.
तो मतलब बच्चे लोग सेक्शन ए में इसी के थ्रू बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, बट आई डोंट वांट कि तुम अपठित गद्यांश के थ्रू ही स्कोर करो। मैं चाहता हूँ अपठित गद्यांश में से 10 आए, बट यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन योर ऐसे एंड योर पत्र। ठीक है। फोर्थ वन इज योर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज वुड बी ऑफ 8 मार्क्स। इसमें आपको कैसे पूछ सकते हैं, मतलब लाइक पर्यायवाची आपको पूछेंगे। सॉरी, पर्यायवाची दे विल आस्क यू। योर प्रीलिम वन पेपर इज रेडी। ठीक है। इफ यू वांट आई कैन सेंड इट टू यू एनी टाइम whenever you are prepared. पर्यायवाची they can ask you विलोम। ठीक है। they can ask you वाक्य परिवर्तन। ठीक है। तो आई थिंक सो पर्यायवाची विलोम वगैरह इट्स योर वर्क, क्योंकि तुम्हें यू नीड टू रिमेम्बर दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। एंड वाक्य परिवर्तन एंड ऑल आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर फॉर इट, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा वाक्य परिवर्तन परिवर्तन एंड ऑल। ठीक है। ऐसे कोई भी वाक्य को परिवर्तन में करते परिवर्तित करो, जैसे कि आपको बोला है कि संयुक्त वाक्य से मिश्रित में करिए या मिश्रित से सरल वाक्य में करिए। या आपको कह सकते हैं कि मैं खाना नहीं खाती, नहीं हटाओ पर अर्थ ना बदले। ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग सीखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई विल सेंड यू वन शीट एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम इस साल के स्कूल के जो अलग अलग स्कूल के पेपर्स हैं 80 मार्क्स के, एंड लास्ट ईयर के जो स्कूल के अलग अलग पेपर्स हैं 80 मार्क्स के, उसको रेफर करो। उसी में से क्वेश्चंस तुम्हारे बन के आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है। एंड देन अगेन योर सेक्शन बी तो वही है। सेक्शन बी में टोटल 6 सेट्स आएंगे, मतलब एक्चुअली बोर्ड्स में यू विल गेट 24 सेट्स, पर यू आर स्टडिंग 2 बुक्स ओनली, एकांकी संचय और साहित्य सागर। ठीक है। बाकी के जो दो रहेंगे ना, वो नया रास्ता से रहेंगे। नया रास्ता जो चैप्टर है। हाँ। नया रास्ता बुक से रहेंगे। और एक और कोई तो बुक है, याद नहीं आ रहा। तो हम लोग को वो 2 बुक्स पे ध्यान नहीं देना, हम लोग का एकांकी संचय साहित्य सागर पे ही मेन फोकस रहेगा। ठीक है। तो 3 सेट आपका आएगा साहित्य में से, और 3 सेट आएगा आपका एकांकी में से। ठीक है। So you have to attend any four. So you can attend any three, all three from Sahitya, one from Ekanki, or all three from Ekanki, one from Sahitya, whichever you're comfortable with. ठीक है। तो whenever you are prepared with your syllabus and all, just do let me know. I will send you the Hindi का paper. ठीक है। And any of your friend who is interested to give, they can also give, because first film is free for all. Everyone can give it. Okay. Anyways, continuing with the chapter, कल हम लोग कहाँ पे स्टॉप हुए थे? Sir, we have to एक मिनट, कहाँ पे हुए थे हम लोग स्टॉप? पेज नंबर 85 पे हुए थे, कौन से डायलॉग पे? yes. चित्तौड़ की तलवार हाथ में चमकते हैं, खिलती है, ये कर लिया था। अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने चलते तो मैं क्या, हाँ Sir, यार I खुद। think we finished 85. नो नो, फिर 85 ही हैवेंट फिनिश्ड येट। उदय सिंह का जो डायलॉग है, तो अब मेरा मन बहलाने लगी, कैन यू सी इट? उदय सिंह का जो डायलॉग है, द थर्ड डायलॉग फ्रॉम द टॉप ऑफ पेज ऑफ उदय, नो, द फोर्थ डायलॉग फ्रॉम द टॉप ऑफ पेज, कैन यू सी इट? उसी तरह रुखे स्वर Yeah. में अब मेरा मन बहलाने लगी। अब मेरा मन में मेराने लगी कैन यू सी इट? बेरा बेलाने बहलाने। बहलाने लगी। हम्म, तुम नहीं तुम ना, नाच देखने नहीं चाहती तो मैं चलती। ही चलती तो मैं ही आंके अकेले चले जाऊंगा। अकेला चला मैं जाऊंगा। मैं जाता हूँ। ठीक है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग टू इट।
तो उदय सिंह बोलते हैं कि अब मेरा मन बहलाने लगी हो। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि पन्ना कैसे बोलती है कि चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। जैसे लताओं में फूल खिलते हैं उसी प्रकार राजपूतों और चित्तौड़ के वीरों के हाथ में तलवार खिलती है। फिर पन्ना ये भी बताती है कि अभी वो समय नहीं आया कि तुम तलवार के साथ हो। ऐसा समय एक दिन आएगा जब तुम चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए तलवार के साथ सोओगे कई रातों तक। और फिर उदय सिंह रूठ जाता है तो पन्ना धाय बोलते हैं कि रूठने से राजवंश नहीं चलते। ठीक है। तो यही सब पन्ना बोलती है उसका मन बहलाने के लिए कि टू डाइवर्ट हिज माइंड टू, मतलब उसका जो दिमाग है उसको नाच गान की ओर से हटा के उसको दूसरी जगह उसका दिमाग लगाना। तो उदय सिंह समझ जाते, बोलते अब मेरा मन बहलाने लगी हो। मतलब ही आस्किंग कि यू आर ट्राइंग टू डाइवर्ट माई माइंड, तुम मेरे दिमाग को, तुम मेरे जो मेरा मन है जो नाच गान देखने का, तुम वहां से मेरे बहला फुसला के दूसरी ओर तुम आकर्षित कर रही हो। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना ठीक है मत जाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। इफ यू डोंट वांट टू गो विथ मी आई विल गो अलोन। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाने को उद्यत होता है, मतलब वो बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो थोड़ा उठने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा हाँ उठने का क्रियाक्रम करता है, कटक्रम, कि हाँ वो उठ रहा है, जाने की और कोशिश कर रहा है। तो पन्ना बोलती है नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। ठीक है। तो पन्ना बोलती है कि नहीं नहीं, तुम रात के समय, क्योंकि हमने देखा था कि यह कहानी रात के 2 बजे, मतलब नॉट रात के 2 बजे, रात का जो दूसरा प्रहर था उस समय की है, मतलब काफी रात हो चुकी थी। और पन्ना बोलती है कि तुम अकेले रात को घूमने मत जाओ। क्यों नहीं जाओ घूमने? तो कभी कभार पूछते हैं कि पंडा ने मना क्यों किया। तो हम लोग लिखेंगे कि चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं। अब ये जहरीले सर्प से पन्ना का क्या अर्थ है, तुम्हें एग्जाम में पूछेंगे, बोर्ड्स में पूछा भी गया है। पूछा जाएगा कि ये जहरीले सर्प से तुम्हारा क्या अर्थ है। तो तुम्हें लिखना होगा कि ये जो जहरीले सर्प हैं ये बनवीर के साथी या बनवीर के सिपाही हैं। तो हमने देखा था कि बनवीर क्रूर है, जो कि राजा विक्रमादित्य को मार के उदय सिंह को भी मारना चाहता था ताकि वह चित्तौड़ का राजा बन सके। और इसीलिए बनवीर हमेशा मौके में रहता था कि कब उसको मौका मिले और उदय सिंह एवं क्या कहते हैं, इसको राजा विक्रमादित्य को मार दे। इसीलिए वरना उसे सावधान चेतावनी देती कि तुम रात को कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि रात के समय कई जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं, किसी भी समय डस सकते हैं, मतलब किसी भी समय तुम्हें पकड़ के। क्योंकि जो उदय सिंह है, कुंवर उदय सिंह की उम्र सिर्फ 14 वर्ष है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर पाएंगे। ठीक है। तो कुंवर जो बनवीर के सिपाही हैं, उसके साथी हैं, वो उसको पकड़ के उसका गला काट सकते हैं, उसकी कत्ल कर सकते हैं, उसको खत्म एकदम उसका सर्वनाश कर सकते हैं। तो वही पन्ना बोलते हैं कि जहरीले सर्प घूम रहे हैं जो कि बनवीर के सिपाही हैं और उसको कभी किसी भी समय डस सकते हैं, मतलब मार सकते हैं। उदय सिंह पूछता है कौन से सर्प, कैसे सर्प की बात कर रही हो, मतलब उदय सिंह इज नॉट गेटिंग कि तुम किस सर्प की बात कर रही हो, क्योंकि वो तो अभी है तो 14 साल के, अब उसे समझ नहीं आ रहा किस सर्प की बात हो रही है। तो पन्ना बोलती है तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। तो पन्ना बात को फिर से डाइवर्ट करती है कि तुम नहीं समझोगे, या स्मॉल, मतलब यू मस्ट हैव नोटिस कि कभी कुछ ऐसी बात आती है तो तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नो यू आर टू यंग, तुम अभी छोटे हो उसको समझने के लिए, या यू कांट अंडरस्टैंड, यू आर टू यंग, ऐसे बोलते हैं ना। तो पन्ना है भी उसका मन इधर उधर बहलाते हुए बोलती है कि ठीक है अब तो तुम नहीं समझोगे, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। उदय सिंह बोलते नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूंगा और आज ना अपनी शैया पर ही सोऊंगा। फिर उदय सिंह बोलते कि नहीं, वो धाई माँ को अपनी माँ मानने लगे थे, क्योंककि मतलब उस समय धाई माँ जो होती थी, बच्चों की देखभाल करने संरक्षण करने वाली जो होती थी, वो जनरली एकदम माँ का ही रोल निभाती थी। पर माँ का रोल नहीं, मतलब माँ का प्लेस नहीं ले पाती थी। पर धाई माँ एक ऐसी औरत थी जिन्होंने उदय सिंह की माँ, जो कि महारानी थी चित्तौड़ की, उनकी मृत्यु के बाद उदय सिंह को इतने अच्छे से संभाला कि वो माँ समान हो चुकी थी उदय सिंह के, और उदय सिंह उन्हें माँ बुलाता था, धाय माँ ने। तो बोलता था माँ मैं आज नहीं भोजन नहीं करूंगा और अपनी शैया पर ही सोऊंगा। तो पन्ना बोलती है सुनो सुनो कुंवर,
चले गए मतलब कुंवर जो रहता है उदय सिंह गुस्से में बोलते हैं कि मैं भोजन नहीं करूंगा ना अपनी शैया ना अपने बिस्तर अपना बेड पे नहीं अपने बेड पे नहीं सोऊंगा, और फिर उठ के चले जाते हैं। पन्ना उसे रोकती है, अरे अच्छा सुनो रुको। मतलब कुंवर चला जाता है। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीप दान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब तो बनवीर का राज्य है। तो पन्ना बोलती है कि अरे रुको कुंवर, मतलब कुंवर वहां से गुस्से में रूठ के चला जाता है, तो पन्ना से रोकने की कोशिश करती है, तब तक फिर उदय सिंह वहां से चले जाते हैं, कुंवर उदय सिंह। फिर पन्ना अपने आप से बोलते हैं कि कुंवर का उठना भी मुझे अच्छा लगा, रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। मतलब मतलब कैसे माँ को अपने बच्चे का गुस्सा होना भी अच्छा लगता है, अपने बच्चे का खुश होना भी अच्छा लगता है, अपने बच्चे का रोना मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, पर अपने बच्चे का हर चीज अच्छा लगता है। बच्चा खाए, बच्चा न खाए, बच्चा रोए, बच्चा गाए, माँ को अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तुम कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, मस्त एकदम रेडी हो गए हो पार्टी के लिए। तुम्हारी मम्मी बैठी हैं, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारी बहन बैठी है, तुम्हारे पापा बैठे हैं। अपनी बहन से पूछोगे मैं कैसी लग रही हूँ, तो शिविल से तुम बंदर लग रही हो। भाई से पूछोगे तो वो बोलेगा तुम जोकर लग रहे हो। पापा से पूछोगे तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मम्मी से पूछोगे तो मम्मी कभी भी तुम्हें देखेंगे, तुम सो के भी उठोगे तो मम्मी बोलेंगी बहुत सुंदर लग रहा है, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल मैन, वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम पर्सन, या वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, एटसेट्रा। ठीक है। तो यही इसी प्रकार पन्ना धाय भी बोलते हैं कि कुंवर का उठना रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। और तब तक फिर पन्ना आगे कंटिन्यू करती है कि नाच गान दीपदान, ये सब चित्तौड़ में क्या हो रहा है, इससे चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। मतलब पन्ना बोलती है कि चित्तौड़ एक ऐसी भूमि है जहाँ पे नाचना गाना और दीपदान करना ये सब वहाँ की परंपरा नहीं है। क्या इससे चित्तौड़ की रक्षा होगी? चित्तौड़ एक ऐसी भूमि है जो बलिदान की भूमि है। ठीक है। वहां पे स्त्रियां जौहर करती हैं। इफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मूवी पद्मावत, जिसमें रानी पद्मावती और उनके साथ अनेक दासियां जलती हुई आग में जौहर करती हैं अपने पतियों के मृत्यु के बाद। ये जौहर की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, और ये बलिदान की भूमि है। मतलब पन्ना धाय कहना चाहती हैं कि चित्तौड़ एक ऐसी भूमि है जहाँ पे नाचना गाना, ये तो मतलब हाँ नाचना गाना हर जगह की संस्कृति में होता है, पर चित्तौड़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे बलिदान किया जाता है, अपने शीश कटते हैं अपने देश के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए। जहाँ पे स्त्रियां जौहर कर, जहाँ की स्त्रियां भी इतनी बहादुर है कि स्त्रियां तक जौहर करती हैं, उस भूमि पे नाचना गाना दीपदान, क्या ऐसे सुरक्षा होगी चित्तौड़ की? अब तो बनवीर का राज्य है, मतलब ऑलमोस्ट वहां पे बनवीर का राज्य हो चुका था, बनवीर अपने वश में सबको करने का कोशिश कर रहा था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेलिंग कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सारे जो नेता होते हैं वो अपनी अपनी और पीपल को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं, बट कोई एक ऐसा नेता होता है जो पूरी तरह जनता को इन्फ्लुएंस करता है, जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है, जनता का मन बहलाता है और अपना राज्य वहां पे लेके आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी बनवीर का राज्य आ चुका होता है, लगभग आ चुका होता है। इवन दो वो ऑफिशियली कोई राजा नहीं होता, पर उसका राज्य आ चुका था। जनता उसके कामों कार्यों से खुश थी आदि। पर तब तक जब तक वह राजा नहीं बना था, जैसे ही वह राजा बनता उसकी क्रूर जो उसके क्रूर कार्य, जो उसके क्रूर निर्देश वगैरह सब देखने को मिलते। तब तक किशोरी आती है। अब किशोरी यहाँ पे सोना है। हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि किशोरी कौन है। किशोरी एक वो मैंने बताया था, सोना, जो कि रावल स्वरूप सिंह की बेटी है, 16 साल की आयु है, और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, अत्यंत रूपवती और थोड़ी नटखट मिशीवियस मैंने बताया था। तो इसको यहाँ पे किशोरी के नाम से भी बताया गया है और सोना के नाम से भी बताया गया है। ठीक है। तो सोना आती है और धाई माँ को बोलती है, धाई माँ को प्रणाम। तो पहले के समय में कोई भी किसी से भी कोई भी जूनियर किसी भी सीनियर से मिलता था। ठीक है। चाहे वो छोटी दासी हो, वो बड़ी दासी को प्रणाम करती थी। कोई छोटा सैनिक हो, अपने जो सेनापति थे उसको प्रणाम करता था, या जो भी उनका रहता था, दे ग्रीट ईच अदर। ठीक है। तो वैसे ही सोना भी धाय माँ को प्रणाम करती है। पन्ना पूछती है कौन है,
तो किशोरी बोलती है, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की, कुंवर जी कहाँ है? तो सोना बोलती है, सोना इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ कि मैं रावल स्वरूप सिंह जी की लड़की हूँ, मैं कुंवर उदय सिंह जी से मिलने आई थी, कुंवर किधर है? पन्ना बोलती है, वे थक गए हैं, सोने को गए हैं, सोना चाहते हैं। मतलब पन्ना वांट्स टू से कि वे थक गए, सोना चाहते हैं। पन्ना का मीनिंग वाज दैट कि सोना चाहते हैं मतलब ही वांट्स टू स्लीप। अब जो एक्चुअली में सोना है उसको लगता है सोना चाहते हैं, तो मैं भी तो सोना हूँ, तो शी मतलब आयरनिकली, मतलब थोड़ा सा वो तंज कसते हुए मतलब बोलती है कि अगर उनको सोना चाहिए तो मैं भी तो सोना हूँ, मेरा नाम भी सोना है, तो मुझे ही ले ले, मैं उनके साथ खेल लूंगी। यही कहना चाहती है पन्ना। तो तुम फिर पन्ना बोलती है, सॉरी सोना बोलती है, सोना बोलती है कि मैं भी तो सोना हूँ, अगर वो सोना चाहते हैं तो पन्ना बोलती है, चुप रह चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना बोलती है, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। यूं कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह तान। पन्ना बोलते हैं कि चुप रह सोना, बिकॉज सोना, इवन दो शी वॉज इनोसेंट, बट उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, बनवीर वॉज ब्रेन वॉशिंग her, जिसकी वजह से पन्ना उसको नहीं पसंद करती थी थोड़ा। इसलिए पन्ना उसको थोड़ा गुस्से में कहती है कि चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना बोलती है, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? मतलब शी टेल्स, क्या क्या हम लोग अपनी कुल देवी के सामने नाच के अपनी भक्ति भावना को नहीं प्रकट कर सकते? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। यो कुंवर जी भी बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, कुंवर जी जब तक वहां पे थे उन्होंने बहुत देर तक हमारा नाचना देखा, और मैं भी नाचते समय उन्हीं को देखती रही, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। हम लोग को ये तब भी पता चलता है जब कुंवर आके बोलते हैं ना कि ये लड़कियां इतने सुंदर तरीके से नाच रही हैं, मानो जैसे मानो जैसे जो दीप कुंड में नाच रहे हैं, उसी प्रकार लड़कियों का पैर भी थिरक रहा है, और उसी प्रकार लड़कियां भी इतने सुंदर प्रकार से नाच रही हैं। तो मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, देखो पैरों की यह ताल। तब तो थोड़ा सा वो उसने पैरों में घुंघरू पहने हुए थे और थोड़ा सा नाच के पैर की ताल से सुनाती है कि देखो मैं कितना अच्छा नाचती हूँ। तो पन्ना बोलती, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो रावल जी, हम लोग को इस डायलॉग से पता चलता है कि रावल जी वॉज ए रिस्पेक्टेड पर्सन। ठीक है, हम लोग आगे, मैं कहानी के एंड में बताऊंगा रावल जी कौन थे, मैं कहानी की अभी और आगे। तो अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो मतलब रावल जी काफी एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे, पन्ना रिस्पेक्ट है, ठीक है, पन्ना उनका आदर सम्मान किया करती थी, इसलिए कहती है कि अगर तू रावल स्वरूप सिंह जी की लड़की नहीं थी तो अभी तुझे बताती, मतलब शायद से डांटती, या हो सकता था मार भी सकती थी, मतलब एक थप्पड़ खींच के लगा देती, ठीक है, ऐसा कहना चाहती है। सुना बोलती है, कटार झोंक देती, मतलब पन्ना बोलती है ना कि अगर तू रावल स्वरूप सिंह जी की लड़की नहीं तो बोल के वो रुक जाती, तब तक सोना बीच में से काटती है, कटार झोंक देती। कटार मतलब पहले के समय में लोग ऐसा खंजर टाइप का रखते थे, ठीक है, ऐसा एक चाकू टाइप का होता था, छोटा सा, अपने पॉकेट में रखते थे, लाइक अ नाइफ, जो कभी भी कोई भी दुश्मन पे से खतरा महसूस होने पर दुश्मन के पेट में उसको सीधा घुसा देते थे, खंजर बोलते थे या कटार बोलते थे। आज भी जो सिख कम्युनिटी हमारे इंडिया की, उनका ना, दे वर्क ऑन द 5 केस, कि 5 केस मतलब केश, और दे हैव देयर कंगन, द कड़ा, सॉरी कड़ा, दे हैव दिस कटार, एंड दे हैव देयर कच्छा, एंड वन मोर थिंग इज दैट आई कांट रिकॉल इट प्रॉपर्ली। हमारी जो सिख कम्युनिटी हमारे इंडिया की, वो लोग यह कटार, जो छोटे से जो ये चाकू टाइप का जो रहता है, इसे अपने साथ हमेशा रखेंगे। कोई whenever you notice a Sikh in your area or locality wearing a पगड़ी, he will always carry a कटार या खंजर टाइप का, उनके कमर के पास होता ही है, ठीक है। तो उस समय कटार या जो खंजर होता है, खंजर का अगर चाहिए तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, जो खंजर होता है लोग अपने पास हमेशा रखते थे, चाहे चाहे राजघराने की स्त्री हो,
या कोई भी सैनिकों के पास होता था, सिपाहियों के पास होता था, और राजा राजा महाराजाओं के पास भी रहता था कि कब कहाँ दुश्मनों का खतरा हो जाए और कब कहाँ ये कटार किसी के अंदर झोंकनी पड़ती। तो सोना ही बोलती, कटार झोंक दी थी कटार। तो धाई माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान में अपना हृदय खोखला कर दिया हो। खोखला। तो सोना बोलती कि धाई माँ, तुमने उदय सिंह के लिए, जो कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुमने उसे अपने असली बेटे चंदन से ज्यादा प्यार किया, अपने चंदन को भुला दिया लगभग, और उदय सिंह को पूरा स्नेह और प्यार दिया है। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये है जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि म्यान क्या होता है। म्यान एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तो कभी का नोटिस किया होगा फिल्म वगैरह में कि राजा महाराजाओं के कमर पे से ये एक म्यान लटकती है, जिसमें से वो लोग ये तलवार रखते हैं, ठीक है। और उस म्यान में से तलवार निकाल के जो दुश्मन होता था उसका सर धड़ से अलग कर देते थे। तो ये म्यान होती थी। एक कपड़े का स्ट्रक्चर होता था, नॉट कपड़ा पर हार्ड कपड़ा होता था, लेदर का, जिसमें इस तलवार को रखा जाता था। तो वही बोलती है कि उदय सिंह तुम्हारे मातृत्व में इस तरह समा गए, तुम्हारे मातृत्व में इस तरह अंदर चले गए हैं जैसे तलवार को म्यान में रखा जाता है, म्यान के अंदर डाला जाता है। म्यान जैसे अपने अपने आप को अंदर से खोखला कर लेता है तलवार को डालने के लिए, उसी प्रकार तुम्हारे अपना हृदय भी खोखला कर दिया है उदय सिंह, तुम्हें अपने मातृत्व को खोखला कर दिया है उदय सिंह को उसमें समाने के लिए। तो सोना ऐसा बोलती है, सोना यहाँ पे तंज कसती है। और सोना बहुत ज्यादा तंज कसेगी अभी आगे कहानी में, ताने मारेगी। पन्ना बोलती, यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। पन्ना बोलती है कि तू ये सब जो बोल रही है फालतू बकवास वो सब रहने दे, तुझे पता है ना अभी बनवीर का राज्य है, और उदय सिंह की सुरक्षा करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सोना बोलती है, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े के झूल लाए थे। हाँ झूल, इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे एक रेशम के झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ। ओके, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू रिमूव माय नोटबुक। या ठीक है। हम्म। ओके। तो अब यहाँ पे सोना बोलती है कि बनवीर, तुमने उसे बनवीर कहा, सिर्फ बनवीर? सिर्फ बनवीर नहीं, नाम है उसका, नाम श्री महाराजा बनवीर कहो। मतलब बनवीर ने सोना का दिमाग इस तरह ब्रेन वॉश किया था, उसके दिमाग, उसके ऊपर ऐसा अपना प्रभाव लाया था कि वह यह मान चुकी थी कि अब बनवीर ही महाराजा है। तो सोना बोलती कि उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे, मतलब एक दिन बनवीर बागड़ गए थे। बागड़ एक राजस्थान में एक छोटा सा जगह है जहाँ पे छोटी छोटी पठारों, मतलब छोटी छोटी पठारों से वो जगह बना हुआ है। बागड़, मतलब यू मस्ट नॉट बी नोइंग। वहाँ पे मतलब ओके एनीवेज, आई डिस्कस इट लेटर, थोड़ा वो अलग ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो बनवीर एक दिन बागड़ गया था, राजस्थान में एक जगह का नाम बागड़ है। वहां पे वो गए थे हाथी घोड़े की झूल लाने। झूल क्या होता है? एज यू नो, नवरात्रि इज अराइविंग नाउ, ओनली 1 वीक इज लेफ्ट। तो कभी का नोटिस किया होगा कि हम लोग एक ऐसा, जो थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ, एक ऐसा चुनरी जिसे हम लोग बोलते हैं चुनरी, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? हैव यू एवर हर्ड अबाउट चुनरी और समथिंग? No, sir. चुनरी, हैव नेवर हर्ड? No. स्ट्रेंज। ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया चुनरी इज वेरी 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 फेमस, एंड वी लाइक ऑफर इट टू द गॉडेस ड्यूरिंग नवरात्रि एंड ड्यूरिंग नॉर्मल डेज एज वेल। तो चुनरी क्या होता था, लुक आई विल शो अ पिक्चर ओनली। तो झूल एक तरीके का चुन्नी होता था, चुनरी होता था।
एंड लाइक इन नॉर्थ इंडिया इट्स वेरी वेरी फेमस। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जो लेडीज होती है नॉर्थ इंडिया में, लाइक बीट इन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे नॉर्मली लेडीज इसको वेयर करती हैं। यू मस्ट नॉट बी नोइंग द नेम, तुम्हें नाम शायद से ना पता हो, पर तुम जब फोटो देखोगे तो तुम्हें पहचान में आ जाएगा। ठीक है। ओके, हैव यू सीन दिस ऑन राइट साइड पे जो बड़ा सा पिक्चर है? हेलो। Sir, yes, I've seen it. या तो हम लोग इसे चुनरी बोलते हैं माता का, एंड इसे हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं। ठीक है। तो जब उस समय में इस चुनरी को पूजा में भी यूज किया जाता था, साथ ही हाथी घोड़े के ऊपर इसे बिछाया जाता था। आज भी केदारनाथ वगैरह वेनेवर यू गो, वहां पे जो घोड़े होते थे उनके ऊपर ऐसा अच्छा सा चुनरी टाइप का बिछाया जाता है। तो बनवीर जब बागड़ गए थे, और बागड़ में अच्छी अच्छी उस समय चुनरियां बनती थी। राजस्थान का एक ऐसा एकलौता जगह है बागड़, जहाँ पे चुनरी बहुत सुंदर बनती, आज भी बनती है और पहले भी बनती थी। तो जब बनवीर बागड़ गया था तो वहां हाथी घोड़े के लिए झूल लाने गया था, वहां से हाथी घोड़े के झूल लाया था। तो वो लाते समय सोना के लिए भी झूल लाया था। अब सोना उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा देती है कि झूल मतलब ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन देती है कि इट फील्स लाइक कि बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा प्रिटी था एंड ऑल। ठीक है। हाँ। तो ऐसा लगता था कि वो रेशम के एक झूल लाए थे। तो चाहो तो झूल के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो कि झूल एक पारदर्शी चमकदार कपड़ा होता है या चादर होता है, या एक तरीके का ओढ़नी होता है। ठीक है। स्क्रीन ऐसे, कैन यू सी द स्क्रीन? या। ठीक है। तो पारदर्शी एक चमकदार कपड़ा होता है या ओढ़नी कह सकते हो। ठीक है। तो वो सोना बोलती कि मेरे लिए भी एक रेशमी झूल लाए थे, वो रेशम का झूल लाए थे। उन्हें उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले से आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। तो मकड़ी का जाला, हैव यू एवर हर्ड अबाउट मकड़ी का जाला क्या होता है? No. ओके। थोड़ा वर्ड फॉर यू, द वर्ड वुड बी न्यू, बट यू आर वेरी फेमिलियर टू इट। ठीक है। मकड़ी का जाला इज अ स्पाइडर्स वेब। अब समझ में आया? Yes. तो मकड़ी का जाला इज स्पाइडर्स वेब, एंड स्पाइडर्स वेब हमेशा व्हाइट कलर के ही होते हैं जनरली। एंड नॉर्थ इंडिया में क्या होता था ना, मतलब इन नॉर्थ इंडियन जो होम होते हैं, बीट इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नॉट मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां पे ना ऐसे दीवार होते थे। ठीक है। मतलब हर रूम में तो दीवार होते ही हैं। तो से दिस इज योर विंडो। ठीक है। दिस इज योर एंट्रेंस डोर रूम का। एंड ऑन टॉप में ना ऐसा एक छोटा सा विंडो होता था जिसपे ऐसी जाली लगी रहती थी। ठीक है। ऐसा एक छोटा। तो जनरली उतने ऊपर कोई साफ सफाई कर नहीं पाता है, तो वहां पे ना ऐसा मकड़ी का जाला फॉर्म हो जाता है। ठीक है। समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ऐसा कुछ मकड़ी का जाला टाइप का फॉर्म हो जाता था। ठीक है। ऐसा कुछ मकड़ी का जाला टाइप का फॉर्म हो जाता था ऊपर इस खिड़की के पास, क्योंकि जनरली वहां पे उतना ऊंचा कोई जनरली सफाई नहीं कर पाता था। ओनली ऑन सम फेस्टिव ओकेजन लाइक दिवाली, नवरात्रि और समथिंग क्लीनिंग होती थी। अब उतना ऊपर कोई जनरली साफ नहीं कर पाता था, तो मकड़ी के जाले बड़े बड़े वहां पे बन जाते थे। अभी मकड़ी के जाले उस समय, हाँ, जो ये विंडो होता था इट वाज मेंट फॉर वेंटिलेशन एज वेल एज फॉर लाइट एज वेल, क्योंकि उस समय ना अ, दिए जलाए जाते थे। एंड एज थोड़ा डेवलपमेंट जब होना चालू हुआ तब लाइट आने लगी। ठीक है। लाइट वगैरह बल्ब आते थे। अब इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट वेरी श्योर कि रहेगी कि नहीं रहेगी, मतलब कंफर्म नहीं होता था कि विल देयर बी इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो ऐसा ऊपर से इसको रोशनदान बोला जाता था, रोशनीदान या रोशनदान बोलते हैं इसको, जिसमें से लाइट आती है बाहर से। ठीक है।
तो रात के समय जब चंद्रमा चमकता है पूर्णिमा वाले दिन, कोई भी दिन, मैं पूर्णिमा वाले दिन का एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जब रात को जब चांद चमकता है तो अंदर मून लाइट आती है। एंड व्हेन दिस मून लाइट पासिस थ्रू दिस मकड़ी का जाला, स्पाइडर्स वेब, इट सीम्स लाइक, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, या इट सीम्स लाइक कि मकड़ी के जाले के अंदर से चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं, बिकॉज मकड़ी का जाला इज नॉट वेरी रिजिड और समथिंग, बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। तुम फूंक भी मारोगे तो वो हिलने लगता है, टूट सकता है। तो ऑब्वियसली रोशनदान में से हल्की हल्की हवा आती रहती है और चांद की रोशनी भी आती है। एंड दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग मिक्सचर, जब चांद की रोशनी व्हाइट कलर के मकड़ी के जाले पे पड़ती है और जब हवा हल्की हल्की पवन चलती है और जब वो हल्का हल्का ऐसे हिलने लगता है और चांद की रोशनी में, तो ऐसा लगता है मानो रेशमी जो बताती है सोना की जो मेरे रेशमी झूले उसी प्रकार दिखते हैं। सफेद कलर का जो मेरा रेशमी झूला है, मान लो मकड़ी के जाले कैसे चंद्रमा की रोशनी में थिरक रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण इस प्रकार करती है कि उसका जो रेशमी झूल है, उसकी जो ओढ़नी है वो सफेद कलर की है। और जब वह उसे पहन के नाचती है, जब पहन के उसे घूमती है, घूमर करती है, गरबा खेलती है, तब ऐसा लगता है मानो रात के समय में मकड़ी के जाले पे चंद्रमा की रोशनी पड़क रही हो, और चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो, और हल्की हल्की पवन से वह मकड़ी का जाला थिरक रहा हो, मानो वो मकड़ी का जाला नाच रहा हो चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की किरणों में, और बहुत ही सुंदर लगता है वो। ठीक है। अब आई डोंट नो अबाउट साउथ, क्योंकि जनरली साउथ में ऐसा मैंने नोटिस नहीं किया कि ऊपर रूम्स के ऊपर ऐसा रोशनदान होता है, बट वेन एवर यू विजिट नॉर्थ इंडिया ना, यू विल नोटिस ईच एंड एवरी हाउस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कि वहाँ पे हर घर में ऊपर, हर रूम में एक्चुअली ऊपर एक रोशनदान होता ही होता है। बीट योर वॉशरूम, बीट योर किचन, बीट योर बेडरूम, बीट योर लिविंग रूम, कुछ भी हो, घर में ऊपर रोशनदान एक होता है। ठीक है। तो वही सोना बताती है। फिर पन्ना बोलती है बहुत नाचती हो तुम, कुछ ज्यादा नहीं नाचती हो तुम, तो तुम पर बनवीर की लगती है बहुत ज्यादा कृपा है। तो पन्ना को पता है ऑब्वियसली कि बनवीर उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, उसको अलग अलग जगह से लाके गिफ्ट दे रहा है वगैरह। ठीक है। तो पन्ना बोलती है कि तुम बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना बोलती है, अभी अच्छा रुको, ये थोड़ा डायलॉग जो है इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा एट स्टेज पढ़ाना होगा। एंड मीटिंग खत्म होने वाला है, विल सेंड यू अ न्यू लिंक, एंड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता है इसको, जो भी लिंक भेजूंगा, क्योंकि क्या है ना, ये थोड़ा डिटेल वाला डायलॉग है। ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग।